ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब 1.5। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगा रहो, डॉक्यूमेंट को अटैच करवाने के लिए गेजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to Nagaland TV. So mono lagawas. Viewers apni kan saida kan ishna idia mohan IMC Hall day nase. IMC Hall day ahla reason it was that rozgar mela hoina. प्रधान मंत्री लगा कुंतु स्कीम से आमी हलगा यूथ खन के एम्प्लॉय कुरबले को आदु तदे 10 लाख जॉब दिबो गने थाला अजीबी प्रोग्राम एकता जायसे अरे तो आईएमसी होलते होइदागा अजी मोहन इदि किंगा जबुले से गुइने दो बिदोडे साइ सबु और खबर बानी सना दुदे जॉब लगा अपॉइंटमेंट लेटर दिबुले से और अलग अलग डिपार्टमेंट नोलिबी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सेक्टर्स खानती तो जॉब तो अलाया से गुइने मोहन जाने इदो गने आगे बढ़ने किंगा होय तो हमने के चनाइ देबो। I'm Chichi Mohammed from West Bengal. I have been appointed as Riflewoman in Assam Rifle. I am very thankful to our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for inviting me to this Rozgar Mela to receive my appointment letter. I will try my best to serve the department and nation with honesty and full dedication. Thank you and Jai Hind. Ma'am, sir, and everyone gathered here. I am Alamela Ayer from Timabur, Nagaland. I have been appointed as GDS PPM Department of Post in Nagaland Division. I am very grateful to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for inviting me to this Rozgar Mela to receive my appointment later. I will try my best to serve my department with honesty and full dedication. Thank you. Madam Kumari Pratibha Bhaumik, Minister of Social Justice and Empowerment, other dignitaries and guests present over here. Myself, Jimmy Bora,
MSc Nursing from Assam, selected nursing officer from Negrims. I feel great to extend my privilege as on the occasion of Rozgar Mela, I got opportunity to get my appointment from our Prime Minister Narendra Modi. So I am thankful to you, sir. This Rozgar Mela is an initiative that is launched in the year 2022, and from that, under our Prime Minister guidelines, lots of the candidates are getting appointment. Not only candidates, even through this, every family is getting financial support, mental support, and physical support also. So I am thankful for this. At the end, I also extend my thanks to Director Negrims, Deputy Director Negrims, and the recruitment body of the Negrims Hospital for giving me opportunity to serve this community, the people under this esteemed institution. First of all, I would like to thank our Honorable Minister, Kumari Pratima Bhaumikji, who have come all the way from Tripura to join us for this 5th tranche of the Rozgar Mela that was held today. And in Dimapur, we are handing out 321 appointment letters to the participating departments, 6 participating departments and ministries. And I am Som Kamai, Postmaster General of Northeast Circle, and we are the host. The Postal Department is the host for this event, for this 5th tranche all over the country. We are having 45 venues all over the country, and we are handing out 71,000 appointment letters today. So I am very proud that our Honorable Minister is here today, Madam Pratima Bhaumikji, who has come all the way. And I think, ma'am, ये आपका first time है या नागालैंड में हाँ थर्ड टाइम yeah. So it's our first time to Nagaland also. Third time, and we would like to welcome her once again. सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, जो 10 लाख युवाओं को उसको रोज़गार देने के लिए, उसको जॉब देने के लिए उन्होंने एक संकल्प किया था। तो संकल्प को साकार करने के लिए उस सिस्टम को डेवलप किया गया, और आज हम दीमापुर में 5th रोज़गार मेला में हम लोग सब लोगों ने उसका हिस्ट्री का एक इवेंट को हम लोगों ने देखा है। 5th रोज़गार मेला में आप जैसे जानते हैं भारत की 45 प्लेसों में, स्थानों में उसका नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ के सबको उसको संबोधन करता है, सबको उन्होंने नियुक्ति पत्र देते हैं। तो उसको हम लोगों ने आज नॉर्थ ईस्ट का 6 स्टेट, सिक्किम और असम को छोड़ के 6 स्टेट ने हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 321 वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट उसका आज उसका नोडल डिपार्टमेंट है, वो रोज़गार मेला को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें निमग्रिम्स भी हमारा इधर है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, रेलवे है, वहाँ पे आसाम राइफल्स है, सब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ से मिलके हम उसको किया है। 321 नया नियुक्ति आज मिला है, जिसमें 67 लड़की महिला हमारी प्रतिभा की जो बच्चियाँ है उसको भी उस मिला है। तो आज 71,206 नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसको मिला है। देखिए कितना सुंदर एक सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना किया है। जिसको जॉब मिलेगा उसका भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उसका वर्कशॉप होना चाहिए। साथ ही साथ कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी प्रारंभ उसमें किया है। ऑनलाइन में उसका जो जॉब मिला है वो कैसे उसको नया ज़िंदगी मिला है, कैसे लोगों को हैंडल करेगा, कैसे काम को आगे ले जाएगा, उसके लिए उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी उसके साथ साथ में। तो हम एक नया भारत को कल्पना करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत को कल्पना करते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट का वासी है, हम सबको पता है भारत का दूसरे भागों का लोगों से ज़्यादा हम नॉर्थ ईस्ट वासी को, हमारा पत्रकार बंधु सबको पता है, क्योंकि आप पत्रकार बंधु के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट को पता है। जो हम लोगों ने रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी से हम कैसे जुड़े हैं देश के साथ। हमारा नॉर्थ ईस्ट को पहले क्या स्थिति था,
अभी हम लोगों को 360 डिग्री कैसे हमारा ज़िंदगी को बदल दिया गया। सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हो, हमारा टूरिज़्म का सिस्टम हो, हमारे जनजातीय क्षेत्रों को आगे ले जाना हो, हमारा जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हो, जैसे ऐसा आपका रिसा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, हम रिसा बोलते हैं उसको, जनजाति लोग हमारे स्टेट में भी बनाता है, कोई जानता नहीं था, अभी हमारा प्रधानमंत्री उसको पहनते हैं, हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। नॉर्थ ईस्ट का असम का गामछा हो, हमारा त्रिपुरा का हो, मणिपुर का हो, हमारा नागालैंड का हो, अरुणाचल का हो, जो पहनावा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी पहन के हमको इतना सम्मानित किया है। पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट का एक आइडेंटिटी क्राइसिस में था, हम लोग को जानते नहीं था, लेकिन पिछले 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को भारत का न्यू इंजन का जो उन्होंने सम्मान दिया है, और हम रेडिकली डे आफ्टर डे हर एक क्षेत्रों में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसे पिछले साल बजट में 22-23 का बजट में आप लोगों ने देखा है, डिवाइन जो पीएम डिवाइन ने कल्पना किया है, उसके लिए फंडिंग भी रखा है, क्या है, युवाओं का अपलिफ्ट करने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तरह तरह का आज डेवलपमेंट वर्क के लिए हमारे जो फंडिंग का व्यवस्था उन्होंने रखा है। और आज इस रोज़गार मेला हमारी भविष्य का भारत को निर्माण करने के लिए, और जो बच्चों को उसको मिला है उसका भविष्य निर्माण के साथ साथ भारत को निर्माण करने के लिए अच्छा एक आज स्टेप हुआ है। हम सबको बधाई देता हूँ, और पत्रकार बंधु जितने लोग आए हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रोजगार मेला तो है, अभी तक 15 साल हो चुका है कि हमारा रोजगार जो है वो भरने से ज़्यादा घट रहा है स्टेट के अंदर, तो उसके ऊपर कैसे देख रहे हैं? देखिए, रोज़गार को देने के लिए आप लोगों ने ओनली सरकारी नौकरियों से रोज़गार सीमित रख नहीं सकते, उसके लिए स्टार्टअप का व्यवस्था किया गया है। जो हमारा यंग जनरेशन अपने पैरों में खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोला है, आपको रोज़गार नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए। आज का हम स्टार्टअप किया है, 2016 से जब उसको ऊपर काम किया गया, अभी 10,000 का नीचे स्टार्टअप था, अभी 90,000 के ऊपर स्टार्टअप हो गया है। अभी वो एयर कनेक्टिविटी देखिए, रेल कनेक्टिविटी देखिए, आज हर रोज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से लेके सब कुछ उसी में हमारी रोज़गार है। अभी जो रास्ता मैंने बोला है, असम से गुवाहाटी से आते वक्त आपका डिमापुर तक आया, रास्ता इतना सुंदर हुआ, तो सुंदर जो रास्ता हुआ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उसको इंसान ने तो किया है ना, वहाँ से कुछ लोगों ने काम किया होगा, तो उसके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंसान को जुड़ के डेवलपमेंट हो रहा है, इंसान को वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। और हम हमारी नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी सब समय बोलते हैं टूरिज़्म के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम नया करके डेवलपमेंट में पड़ी है। पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट के लेके ऐसा सोचा नहीं गया था, अभी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रहे हैं, इसीलिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है आगे आके बढ़ चढ़ के उसको हिस्सा भी ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको जो रोज़गार के लिए हमारी मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप का हो, पूरा व्यवस्था सिस्टम दिया हुआ है, आप उसमें जुड़िए और उसमें आप भी आगे बढ़िए। हमारा नागालैंड को भी, हमारे मणिपुर को भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी आगे लेके जाइए। नॉर्थ ईस्ट आगे जाएगा तो भी भारत आगे जाएगा। युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और टोटल में अभी तक कितना युवाओं को अपॉइंट किया गया है? I'd like to answer that. This is central government का employment which is open online in all over North. Is a recruitment drive that is going on all over the country. But specific to Nagaland, there are roughly around 20. From my postal department, I can speak. We have around 52, okay, from Nagaland who has got employment. They'll be getting today. On states only around 5 or 6 hai, because we have to give chance to all the other states. Otherwise, we have from Nagaland around 52. Out of the 221 youths from Northeast getting the jobs. No Northeast, except 6 states. Assam and Sikkim. Do you have any idea how many from Nagaland? Out of that, Yes. that's why I'm telling you, around 50. 52. 52. Around 50 from Nagaland. Yeah.
and then this question is for the Minister. Can you kindly highlight on the schemes that has been implemented by your ministry in the state of Nagaland? मेरे मिनिस्ट्री का जो है उसमें ओबीसी वेलफेयर है जो नागालैंड में नहीं है, एससी वेलफेयर है वो भी शायद नहीं है। सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं नागालैंड के लिए जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग डिजिबिलिटी है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम पिछले बार आए थे तो उसके लिए हमारा डिजिबिलिटी हो, सीएम साहब से भी मैंने बात की डिजिबिलिटी के ऊपर, और सीनियर सिटीजन, और हम युवाओं को जो ट्रेनिंग देके स्किल करा के उसको रोज़गार देने के लिए मैंने वहाँ पे किया है। और यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए 2 DDRC हम लोगों ने नया किया है। तो DDRC मतलब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल जैसा जिसमें सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन वहाँ के फैसिलिटी ले सकते हैं। ऐसे दीमापुर में भी हम लोग एक CRC किया है जिससे पूरा यहाँ के दिव्यांगजन जो सीनियर सिटीजन हो, यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन हो, यहाँ पे आके सेवा ले सकते हैं। और हम यहाँ पे साथ साथ पूरा कंट्री में जो सीनियर सिटीजन है वयश्री योजना के माध्यम से किसी का हियरिंग के लिए मशीन चाहिए, आंखों के लिए चश्मा चाहिए, चलने के लिए बैसाखी चाहिए, दिव्यांगजन जो डिजिबिलिटी है उसके लिए व्हील चेयर चाहिए, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल चाहिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। थैंक यू। Thank you, na? Finish, Thank na? you. Okay, thank you. Whereas apni kan saida kan ishna idia Pratima Bhomik social justice laga minister pra kotha kurishe aro ite Narendra Modi pra tai online brai to kundu job sibule taka tu integrate korine dishe engal logini mohan janibo bara 10 lakh la job thala bitorde 71,000 to aji all over India de dia ase especially 6 state of notice lagai to bitorde bi aisho gine manchane are to bishi manuhan daise aro appointment letter dahan logine alag alag department jinka postal te gobi noli bi GD goli to army Assam rifle te to han dibi aisho gine manchane idu logine mohan press conference agini bi tate kotha kura to Pratima Bhomik ke kotha kura tai inform kuri dia do that enga khali aji no hoy aro age dibi inga job digine jai thakbo 10 lakh la to pura eta tak bi khotom hua nai gone itu bi kuisha at the other hand mohan itu body question kura to Nagaland bi pura question kurise that Nagaland te bi employment rate increase na hoine ulta decrease hoise aro youth khan te bi unemployment kwa dem dibi taila reply itu taikse that tahan la side pra bi tahan focus kuri ase to side te aro tahan as soon as possible itu laga upor bi sai gine solve kurbo koi ni bi to jankari di dise albi question inka ase sob time ditu ami to hune unemployment laga state la khatom kurbo libi eta tak khatom na hoine ase to kitia hobo itu hi ami ruki ase aro hobo na hobo itu bi ami te bi doubt te ase to kwa nishna aji rozgar mela laga 5th program daise aro IMC hall Dimapur de kurine jaise goni to apne anke chonai dia ase so viewers inga news update pai to sai debi Nagaland TV mo reporter Musarraf Ali with video journalist Chawching Pom Nagaland TV Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.